नमस्कार, मैं जसप्रीत कौर और आप देख रहे हो उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। न्यूज आप सभी देखते हैं। आज हम गुनाह, गुनहगार और किस तरीके से यह लोग इतना भयंकर गुनाह को अंजाम देते हैं वह भी आज सुनेंगे। हो सकता है आपके पास बैठे हो, आपके घर के बगल में हो, आपके घर के बगल में ही गुनाह हो रहा हो, ऐसी भी स्थिति देखी जाती है। और आज हम ऐसे ही किस्से आपको बताएंगे वीकली क्राइम न्यूज में। सबसे पहले देखते हैं एक महिला की कहानी जो कि घरेलू हिंसा का शिकार हुई इस डेवलप्ड कंट्री में भी। पहले तो ऐसे किस्से काफी देखे जाते थे, लेकिन अब तक ये थमे नहीं है। ऐसा ही एक किस्सा मालदा में देखा गया, जहां पर एक महिला का शव लटका हुआ मिला। ससुराल वालों पर आरोप कुछ इस प्रकार है कि गला दबाकर फंदे से लटका दिया गया उस महिला को। घटना के बाद इलाके में काफी हफड़ा तफड़ी मच गई कि उक्त महिला का नाम ब्यूटी बीबी बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ससुराल वाले उसे अपना नहीं रहे थे। करीब 3 साल से उनके परिवार में विवाद चल रहा था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आइए आपको वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। बेटी आगे मैं की जाना की मेरी दुनिया छोड़ के चाल जागी मेरी दुनिया কুটুম মিলে তো আমরা দিনই মেয়েটার উপরে ভালোবাসার উপরে করে বিয়ে করেছে ও, হ্যাঁ, নিজের ইচ্ছা মতন। এবার ওর মা বাবা সবাই রাজি হয়ে, আমরা কোনো রাজি ছিলাম না এখানে বিয়ে দেওয়ার জন্যে, কিন্তু ওর মা বাবা ঠিক ওরাও আমাদের হাত পা ধরলো কি আমার ছেলে যখন বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে গেছে, হ্যাঁ, জান দিয়ে দিবে, তো আপনারা গ্রহণ হয়ে আমার মেয়ের বিয়ে দেন আপনারা আমার ছেলের সঙ্গে। আমরাও একটু সমাজের সবাই বললো কি দিয়ে দাও, ছেলেকে জান দিবে। আমরা কিন্তু কি মত দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে, বিয়েটা দিয়ে ফেললাম। এবার তারপরে কিন্তু 3 বছর থেকে পরপর কিন্তু দুর্ঘটনা করে চলে যাচ্ছে। মেয়ে কিন্তু কোনোদিন শোনায় না আমাদেরকে, হ্যাঁ, কি ঝুট ঝামেলা করছে আমার উপরে, কিন্তু ও নিজের পেটে ভরে রেখে দেয়। কিন্তু কি আজকে কিন্তু এই তো পরশু দিন আমার আবার সিরনি খেয়ে এসছে বাড়ি থেকে, হ্যাঁ, ভালো জামাইও ছিল, কিন্তু ওর শাশুড়ি যায়নি সিরনি খেতে, পরিবার সবাই গেছে, কিন্তু আজকে রাত্রে এই ঘটনাটা ঘটছে সবাই মিলে। হ্যাঁ, ওর শাশুড়ি হচ্ছে মেন। আপনারা এখন কি চাইছেন? আমরা চাইছি কি এটা, হ্যাঁ, শাস্তি চাই আমরা। আপনার नाम? আমার নাম শেখ মন্টু। ऐसी ही एक घटना आप ही के शहर से नौका घाट इलाके की है। सनसनी घटना सामने आई है। कुछ इस प्रकार है कि पंकज सरकार नामक एक व्यक्ति अपनी पत्नी रूपा सरकार को दर्दनाक घटना ऐसी ही एक घटना हमारे सिलीगुड़ी के नौका घाट इलाके से देखी गई। एक सनसनी घटना सामने आई है जहां पर पंकज सरकार नामक एक व्यक्ति अपनी पत्नी रूपा सरकार का खून धारदार हथियार से कर दिया, बहुत ही बेरहमी से काटा और वहां से भाग गया। डॉक्टर का यह भी कहना था कि अगर उसे समय पर लाया जाता तो वह बच सकती थी। आइए आपको इस मार्मिक घटना की एक तस्वीर दिखाते हैं। আমার নাম অন্নপূর্ণা মন্ডল। রূপা সরকারের আপনি কে হন? আমি মা হই। তো ঘটনাটা কি হয়েছিল? ঘটনাটা কি হয়েছিল, কতদিন ধরে ওরা অশান্তি করতেছিল। অশান্তি করার পরে পঞ্চায়েত, তারপরে ই করছে, পুলিশেরা জানাইছে, সব জানাইছে। ওরা টাকা পয়সার জন্য ওরা অত্যাচার করে আর পড়াই মারধর করতো। তারপরে আমরা বলছি তোমরা যদি ছেড়ে দেওয়ার হয় তোমরা ছেড়ে দাও, আমার মেয়েকে আমরা নিয়ে যাবো। বলে কি নিয়ে যাবেন, আপনি মেয়ে নিয়ে যান, আমার পোলাপান রেখে যান। আর মেয়ে বলে যে না, আমি যাব না, আমি এমনি সংসার করবো করে। পরশু দিন আমি গেছি। আমি পরশু দিন যাওয়ার পরে বললাম কি চল, কয়দিন থেকে আসবি, তোর এত শান্তি করে, চল তুই থাকে আসি। বলে কি না মা, আমি গেলে ওরা ঘরে বিটটা বিটটা খায়, আমি যাব না, আমি কয়েকদিন পরে যাবো, তাহলে ভালো হবে।
ওরা টাকা পয়সা দিয়ে অশান্তি করে। আমরা তো 1 লাখ টাকা দিছি, 3 ভরি সোনা দিছি, বিয়ে সোনাগুলো বেঁচে গেছে। আপনি নাম কি? রূপা সরকারের কি হন? আমি রূপা সরকারের দাদা হই। দাদা, তো ঘটনা কি হয়েছিল? ঘটনা মানে বিয়ের পর থেকে ওই শ্বশুরবাড়ির থেকে প্রায় অত্যাচার করতো, ঠিক আছে। এর মধ্যে লকডাউনের মধ্যে ওদের অত্যাচার তো বেশ বেড়েই গিয়েছিল, ঠিক আছে। এখন এর মধ্যে ওদের কাজকর্ম ছিল না, এর জন্য আমার বোনকে দিয়ে ও টাকা চাওয়াতো। তো এইটার মনে প্রতিবাদ করবার জন্য কয়েকদিন ধরে আরও বেশি অত্যাচার করে। তো এরকম অত্যাচার করতে করতে কালকে আমাদের এখানটা পুলিশ ফাঁড়ির থেকে খবর দেয় যে এরকম তো আমার বোনকে নাকি কুপিয়ে পিছিয়ে পড়েছে। তো আমরা ওই খবর শুনে তাড়াতাড়ি মেডিকেল কলেজে চলে আসি। মেডিকেল কলেজে এসে ডাক্তারের সাথে কথা বলি। ডাক্তার বলে যে আমার বোন আর নেই, ও রাস্তায় আসার সময় মারা গেছে। এর জন্য আমার যে বোন জামাই আছে আর তার পরিবার আছে, পরিবারের সবার কাছে সবাইকে আমরা সবার ফাঁসি বা মানে কঠিন শাস্তির আবেদন করছি। আপনার বোনের নাম আর বোন জামাইয়ের নাম? আমার বোনের নাম রূপা সরকার আর বোন জামাইয়ের নাম পঙ্কজ সরকার। উনি মাঝে মাঝেই মানে বিয়ের পরের থেকে ও মাঝে মাঝে এরকম মারামারি করতো, ঠিক আছে। এর আগেও ওখানকার গ্রাম পঞ্চায়েত মহিলা সমিতি এদের সবাইকে জানিয়ে আমরা 1-2বার বৈঠকও করেছি। বৈঠকের মধ্যে বারবার ও বলে যে এরকম আর কোনো দিন আর করবে না, ওর সাথে ভালো মতন সংসার করবে। কিন্তু এই কালকে কি হলো আমরা কিছুই বুঝতে পারলাম না। ওদের বাড়ি কেউ ওরকমভাবে মুখ খুলছে না, বললেই মানে কোনো ব্যাপারে কোনো কিছু জানতে চাইলে খালি ওর বাড়ি থেকে বলছে যে রাত্রেবেলা একটা আওয়াজ শুনছে যে এরকম মানে দাও দিয়ে কোপ দিয়েছে। কোপ দেওয়ার পরে ওর বাড়ির লোকজন বের হওয়ার পরে আমার বোন বাইরে বেরোতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু মানে ও ধরে ওরকম অবস্থায় এখানের মধ্যে রেখে বলে মানে কুপিয়েছে। আর পাশে ওর মা, তারপর ওর দেওয়ার ঠাকুর ওরাও ছিল, ওরাও আটকাবার কোনো চেষ্টাও করেনি। তা এখন এই মানে আপনার বোন জামাইয়ের বিবাহিত সম্পর্ক কত বছর হয়েছে? 9 বছর হয়ে গেছে। 9 আর বছর হয়েছে। দুটো ছেলেও আছে, একটা প্রায় 2 বছর আর একটা 6 বছরের। তো এখন আপনি কি চাচ্ছেন? আমি চাই ওদের কঠিন থেকে কঠিন শাস্তি হোক, আর বোন জামাইয়ের আমি ফাঁসি এসে করছি ধন্যবাদ। পরিবারের সবার। আর আমার নামে আরেকটা কেস আছে ওই মহিলার উপরে হাত তুলবার জন্য, আর শ্লীলতাহানির চেষ্টার আরেকটা কেস আছে। আপনার নাম? আমার নাম পলাশ মন্ডল। কোথায় থাকেন? আমি লেকটাউন নবগ্রাম। ঘটনা কোথায় ঘটেছিল? ঘটনাটা হয়েছিল এই চটেরহাট মেডিকেল মোড় আছে, চটেরহাট মেডিকেল মোড়ের ওখানে। अगर राजनीति की बात करें तो कोई पीछे नहीं। सिर्फ बातों के साथ नहीं टकरार होती, बातों के साथ हथियार भी चलाए जाते हैं। उत्तर बंगाल के उत्तर दिनाजपुर की ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां पर कुजरिया ग्राम पंचायत के सदस्य के पति जब बाजार से लौट रहे थे तो उनके असामाजिक तत्वों ने निशाना बनाकर गोली चलाई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी मच गई। आइए आपको इस राजनीतिक घटना की एक तस्वीर दिखाते हैं। আমি তো একটু বাইরে থেকে আসলাম, শুনলাম আমি খবর রাস্তাতে শুনছিলাম, শুনেছি কি ওনার বাড়ির পাশে একটা প্রাইমারি স্কুল আছে, উনি হেঁটে যাচ্ছিলেন বাড়ি, রাস্তার পথে ছিলেন, ওখানেই দুটা গুলি চালিয়ে তারপরে ইসলামপুর হসপিটাল নিয়ে আসলো। আসার পর এখান থেকে রেফার করা হলো, এখন আনন্দলোক নার্সিং হোম শিলিগুড়ি পাঠানো হলো। কি নাম ওনার? ওনার নাম হলো আপনার মোহাম্মদ ইফতেখার আহমদ। গুঞ্জুরিয়া বাড়ি। ডাক নাম আছে ওনার মাস্টার। কি কাজ করেন? গুঞ্জুরিয়া, ওনার ওয়াইফ আছে মেম্বার রুকিয়া বানি, গুঞ্জুরিয়া পঞ্চায়েতের মেম্বার। গুঞ্জুরিয়া পঞ্চায়েত। অনেক ভালো ভদ্রলোক ছিলেন। মানে কারা এই ঘটনার পিছনে থাকতে পারে কি মনে হচ্ছে? দেখেন, এটা তো এখন বলা সম্ভব নয়, কারণ ওনার সঙ্গে কারো কোনো টসল নাই আজ পর্যন্ত।
যারও সঙ্গে কিছু হয়তো বন্ধুতাই রিলেশন থাকলো না সবারও সঙ্গে। এখন ভেতরে নিশ্চয়ই কোনো রসয় আছে, ওয়েল প্ল্যান প্রোগ্রাম করে এটা আপনার গুলি চার্জ করা হচ্ছে। অ্যাটেম্প করলেও ডাইরেক্ট ওয়েল প্ল্যান আছে, ওয়েল প্রোগ্রাম আছে, বুঝলেন? তো নিশ্চয়ই কোনো রসয় আছে। রসয়টা কি আছে? পুলিশের উপর আমার অন্ধবিশ্বাস আছি আমরা। আমাদের সুপার সচিন মাক্কা সাহেব অনেক অ্যাক্টিভ এসপি এখন নিয়োগ আছেন আমার ইসলামপুর ডিস্ট্রিক্ট পুলিশে, প্রথম উনি অনেক অ্যাক্টিভ অফিসার। আমার আইসি মিস্টার ভমিক, উনি অ্যাক্টিভ আইসি আছেন আমার ইসলামপুর থানার। राजनीति एक ऐसी जगह है जहां पर कोई किसी का नहीं होता। ऐसी ही एक घटना पश्चिम बंगाल में भी देखी गई। पश्चिम बंगाल में गोली लगने से बीजेपी नेता पवित्र दास घायल, टीएमसी पर लगे हमले के आरोप। पश्चिम बंगाल में गोली लगने से बीजेपी नेता घायल, टीएमसी पर हमले का आरोप। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी नेता पवित्र दास गोली लगने से घायल हो गए। कथित तौर पर उन पर यह हमला टीएमसी से जुड़े लोगों द्वारा किया गया बताया जा रहा है। घायल बीजेपी नेता पवित्र दास को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शनिवार को बीजेपी के जिला अध्यक्ष पवित्र दास को गोली लगने के बाद से भारी संख्या में कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचे। इसके बाद बीजेपी ने पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा ने कहा कि बंगाल में पुलिस और टीएमसी के गुंडों के बीच मिलीभगत है। मैं जांच की मांग करता हूं। टीएमसी के आरोपी गुंडों को और पुलिस अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई हो। इंसान जानवर को तो काटकर खा ही रहे थे, अब इंसान को ही काटने लग गए। शायद अब इंसानियत बची ही नहीं। खेत में खून से लथपथ मिली एक लाश, जिसका हाथ और पैर दोनों कटा हुआ था। मालदा जिले के मोतीबारी थाने ने एक लाश बरामद की। आइए आपको वहां की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। खेत में खून से लथपथ शव बरामद होने से हड़कंप। मालदा जिले के मोथाबाड़ी थाने की पुलिस ने मक्के के खेत में एक व्यक्ति का हाथ पैर कटा शव बरामद किया। बुधवार सुबह मोथाबाड़ी थाने की नया ग्राम इलाके के जंगल के बीच व्यक्ति का शव बरामद किए जाने की घटना को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतक की शिनाख्त सज्जाद शेख के रूप में की गई है। वह कालियाचक थाने के जोतपरम इलाके का रहने वाला था। स्थानीय लोगों ने मक्के के खेतों में खून से लथपथ उसका शव देखकर पुलिस को इसकी सूचना दी। मृतक के दामाद मतिउर रहमान ने पुलिस को बताया कि ससुराल से 1 किलोमीटर दूर नया ग्राम इलाके में उनका मक्का का खेत है। उन्होंने बताया पिछले कुछ दिनों से खेत से मक्के की चोरी हो रही थी। इसी के सिलसिले में वे सुबह खेत में गए थे। उन्होंने बताया कि चोरों को शायद उन्होंने पहचान ली थी, इसी वजह से चोरों ने धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि सज्जाद शेख के शरीर पर आघात के कई निशान पाए गए हैं। पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। ওই নিজের জমিতে গিয়েছিল, মানে জমিতে ভুট্টা লাগানো হয়েছে। ভুট্টা লাগাতে প্রত্যেক দিন ওর ভুট্টা গিয়ে কেটে নিচ্ছে। ও দেখতে গিয়েছিল সকাল 5টা নাগাদ, গিয়ে তোর যে ভুট্টা কাটে তাকে ধরে নিয়েছিল। ধরার পরে ও কিছু না দেখতে পেয়ে ওকে গিয়ে খুন করা হয়। बेरोजगारी बढ़ गई है। कोई भी पहले से गलत काम नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूरी भी इंसान से क्या क्या करवा लेती है। एटीएम लूट की काफी तस्वीरें देखी गई इस लॉकडाउन में। इस बात को लेकर बैठक की गई है पुलिस प्रशासन और बैंक के अधिकारियों के साथ। बैंक की सुरक्षा और विभिन्न उपायों के बारे में चर्चा की गई है। आइए आपको वहां की एक स्थिति दिखाते हैं। एटीएम की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने बैंक अधिकारियों के साथ की बैठक। जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने के आयुक्त विश्वेश्वरैया सरकार ने शुक्रवार को शहर के विभिन्न स्थानों में लगे एटीएम की सुरक्षा को लेकर बैंक अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। कोतवाली थाने में आयोजित इस बैठक में पुलिस प्रशासन के अलावा शहर के विभिन्न बैंकों के अधिकारियों की उपस्थिति रही थी। इस बैठक में मुख्य रूप से एटीएम की सुरक्षा व्यवस्था और दुरुस्त करने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार बदमाशों द्वारा एटीएम मशीन की लूट की घटना को रोकने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। गौरतलब है कि जलपाईगुड़ी में एटीएम लूट के साथ जुड़े रहने के आरोप में 2 लोगों को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस ने दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर जलपाईगुड़ी लाकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। तो जिस तरीके से चोरियां बढ़ रही हैं लॉकडाउन में, तो पुलिस प्रशासन जो की है वह अकेले परेशान नहीं है। फॉरेंसिक टीम तक बुलाई गई इस विषय में छानबीन करने को। तो आइए आपको वहां की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। आपको ज्ञात हो कि गत 22 जून की रात सिलीगुड़ी के शक्तिगढ़ इलाके के उज्जवल संघ के नजदीक एक बैंक के एटीएम में चोरी हुई थी, जिसके बाद सर्वप्रथम वहां के स्थानीय लोगों ने अगले दिन की सुबह यानी 23 जून के दिन उक्त घटना को देखा।
इसके बाद इसकी सूचना एनजेपी थाने की पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ में कोई सुराग नहीं लगते देख इसी को केंद्र कर आज कोलकाता से फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की एक टीम मौके पर पहुंचकर विस्तृत छानबीन की। काफी चोरी के मामले जो कि है वह भी सामने आ रहे हैं। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से मोबाइल एवं सोने के आभूषण भी बरामद किए गए हैं। 5 लोग जो कि है उनको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बड़े ही बाखूबी से इन लोगों को गिरफ्तार कर धर दबोचा। चोरी के आरोप में कई गिरफ्तार, चुराई गई सामग्री बरामद। हाल ही में सिलीगुड़ी और उसके आसपास के इलाके में हुई चोरी की घटना की जांच करते हुए पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की विभिन्न सामग्रियां भी बरामद की है। इनमें से कई मोबाइल, सोने के आभूषण व अन्य सामग्रियां शामिल है। बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में डीसीपी नीमा नॉर्बो भूटिया ने एसीपी स्वपन शाह ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब भी कई मामलों की जाँच जारी है। इस अवसर पर ईस्ट जोन के डीसीपी नीमा नॉर्बो भूटिया ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि में सिलीगुड़ी व उसके आसपास में चोरी की घटनाएं सामने आई थी। उन्होंने कहा कि जांच में जुटी पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी के कुछ सामान भी बरामद किए हैं। उन्होंने कहा कुछ मामलों की जांच अभी भी जारी है, जल्द ही पुलिस को इसमें सफलता मिलेगी। থানা অন্তর্গত যে লাগোয়া যে জায়গাগুলো আছে আপনার এখানে আপনার 2-3 মাস ধরে আপনার চুরি হচ্ছিল, অস্টেজ বা আপনার এটা ওই আমার দোকানে চুরি এটা কন্টিনিউ হচ্ছিল। তারপর আমরা ইনভেস্টিগেশন চলছিল। কালকে রাতে আমরা খবর পাই, খবর পেয়ে আপনার প্রথমে 2জন ছেলেকে ধরি। 2জন ছেলেকে ধরার পর তারপর যখন আমরা জেরা করি, জেরা করার পর আমরা তখন অনেক কটাই কেস, যেমন আপনার জিপিএস ক্লাবে হয়েছিল, আপনার ক্যারম বোর্ড হয়েছিল, তারপর টিভি হয়েছিল, তারপর ইলেকট্রিক্যাল শপে আপনার ফ্যানগুলো লক্ষ্য হয়েছিল, তারপর পান দোকানে যে বিড়ি সিগারেটও হয়েছিল, চুরি হয়েছিল। সেইগুলো আমরা একটা আরও একজন রিসিভার যে ছিল তারা রিসিভারকে দিয়েছিল চুরি করার পর তারপর ওই 3 জনকে ধরি, তারপর এইসবগুলো আপনার রিকভার হয়ে যায়। এছাড়াও আমাদের আপনার একটা রিসেন্টলি জানেন আপনার একটা অঞ্জলি জুয়েলার্সে আপনার ভালো একটা চুরি হয়েছিল, এবং 27 লাখ ওয়ার্থ জুয়েলার্স চুরি হয়েছিল। সেখানেও আমাদের কিন্তু একটা মোটামুটি সব কথায় রিকভারি হয়ে গেছে। এই জিনিসটা ধরা পড়ে গেছে, সেখানেও রিকভারি হয়ে গেছে। তারপর হচ্ছে আপনারা জানেন এটা 2-3 মাস আগে এটা আপনার টেট মারি হয়েছিল শিলিগুড়ি থানাতে। যেখান থেকে আপনার একজন লোকের কাছ থেকে আপনার যে আপনার বাড়িতে বাইরে একটা 4 লাখ টাকা ব্যাগ রেখেছিল, সেখানেও আপনার অ্যাকিউজ ধরা পড়ে গেছে 2 জন। সেখানেও আপনার যে 4 লাখ টাকা ছিল সেখানে আমরা 3,80,000 টাকা ধরা পড়ে পেয়েছি। আর রিসেন্টলি আপনার খালপাড়াতে জানেন একটা বাড়িতে আপনার 2 লাখ টাকা চুরি হয়েছিল আপনার, সেখানে জুয়েলারি আপনার কিছু টাকাও চুরি হয়েছিল। সেখানেও আমরা ওই তদন্ত করে ওখানে একজন ধরা হয়েছে। একজন ধরার পর আপনার এন্টায়ার যে আপনার যে থেফট অ্যামাউন্ট ছিল সেটা আপনার রিকভার হয়েছে। আর আপনার এই ছাড়া আপনার একটা এখানে শিলিগুড়ি থানা এরিয়াতে আপনার বিভিন্ন টাইমে আপনার 10টা মোবাইল আপনার চুরি হয়েছিল, মিসিং হয়ে গেছিল। সেটা আমরা মিসিং কমপ্লেন্ট এখানে করেছিলাম। মিসিং কমপ্লেন্ট করার পর সেটা আপনার তদন্ত চলছিল, সেটা আপনার এটা টেকনিক্যাল ইনভেস্টিগেশন যাই হোক সেটা চলছিল। সেটাও আমরা কিন্তু এটা 10টা মোবাইলটা আজকে উদ্ধার করতে পেরেছি। कोरोना से जहां हर जगह संक्रमण फैला हुआ है, लेकिन यह आदमी कोरोना से ना डरकर अपना हवस मिटाने पहुंचा। क्वारंटाइन सेंटर में, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर में छेड़छाड़ का केस वो सामने आया है। अलीपुरद्वार के समुरतरा इलाके में एक आदिवासी लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला वह सामने आया है। सफाई कर्मी द्वारा की गई है ये घिनौनी हरकत। आरोपी गिरफ्तार। क्वारंटाइन सेंटर में युवती के साथ छेड़खानी, आरोपी गिरफ्तार। क्वारंटाइन सेंटर में एक आदिवासी युवती के साथ सफाई कर्मी द्वारा छेड़खानी किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अलीपुरद्वार जिले के शामुकतला इलाके में इस घटना के बाद से भारी तनाव देखा गया। जानकारी के अनुसार शामुकतला थाने के तुरतुरी ग्राम पंचायत के सिमलाबाड़ी इलाके की निवासी पीड़िता युवती काम के सिलसिले में दिल्ली गई थी। शनिवार को वहां दिल्ली से लौटकर 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग को ट्रांजिट पॉइंट पहुंची। वहां से उसे शामुकतला थाने के सटे ज्योतियार स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया। बताया जाता है कि शनिवार रात करीब 12 बजे क्वारंटाइन सेंटर में टॉयलेट के लिए निकली, तभी क्वारंटाइन सेंटर के दायित्व में रहे सफाई कर्मी मिथुन पाल ने उसके साथ छेड़खानी का प्रयास किया। युवती की चीख पुकार सुनकर क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले पुरुष व महिलाएं बाहर निकले। तब तक आरोपी मिथुन वहां से भाग निकला। रविवार सुबह पीड़िता की शिकायत पर शामुकतला थाने की पुलिस ने आरोपी मिथुन पाल को काजीपड़ा इलाके में उसके घर से गिरफ्तार किया। शामुकतला थाने के प्रभारी ऑफिसर विराज मुखोपाध्याय
उपाध्याय ने बताया कि क्वारंटाइन सेंटर में सफाई कर्मी के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत दर्ज की गई है। इसी आधार पर आरोपी मिथुन पाल को गिरफ्तार किया गया है। सोमवार को उसे अदालत में पेश किया जाएगा। एक सनसनी मामला कुछ इस प्रकार सामने आया है कि बीजेपी के नेम प्लेट लगी हुई एक गाड़ी से अफीम के गोंद के साथ 4 लोग गिरफ्तार। सभी लोग झारखंड के निवासी बताए जा रहे हैं और उनके पास 2.6 किलो अफीम के गोंद मिले हैं। बीजेपी की लोगो लगी हुई ये गाड़ी जिसमें अफीम की तस्करी की जा रही है, या बीजेपी का लोगो लगाकर उसके पीछे छुपकर तस्करी कर रहे थे, और कब से? कौन है ये लोग? क्या ये बीजेपी के लोगों के पीछे छुपकर जो तस्करी कर रहे थे, या ये लोग बीजेपी के हैं ही नहीं, या पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए या बीजेपी का लोगो लगाए फिर रहे थे? यहाँ पर काफी सारे जो कि है सवाल खड़े हो रहे हैं और इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन ही दे सकते हैं। तो आइए आपको वहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं। भाजपा के नेम प्लेट लगी गाड़ी से अफीम के गोंद के साथ 4 गिरफ्तार। भाजपा के झारखंड के कोषाध्यक्ष के नेम प्लेट लगा था गाड़ी में। सभी आरोपी झारखंड निवासी। जांच में जुटी पुलिस। मालदा जिले के गोपालगंज आउटपोस्ट की पुलिस ने भाजपा की नेम प्लेट लगी गाड़ी में से अफीम की गोंद के साथ झारखंड निवासी 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया रविवार देर रात कालियाचक थाना अंतर्गत गोपालगंज इलाके में अभियान चलाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 2.6 किलो अफीम के गोंद बरामद किए गए। इसके अलावा उनके पास 1000 रुपया नगद, मोबाइल व उनके पहचान पत्र मिले हैं और पुलिस ने उन्हें जब्त कर लिया है। आरोपियों का नाम नईम अंसारी, इम्तियान अंसारी, तौफिक अंसारी एवं प्रदीप कुमार महतो है। ये सभी झारखंड के रांची थाने के राजा डेरा छतरती एवं आगरा इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। गत परशुदिन 37 নম্বর জেডপি মানে গোলাপগঞ্জ ফাঁড়ির ওখান থেকে আমাদের ওখানকার যিনি প্রেসিডেন্ট আছেন সন্তোষ মণ্ডল, তিনি আমাকে হঠাৎ করে ফোন করলেন যে দাদা এরকম ব্যাপার, রাঁচির আনগড়া মণ্ডলের কোষাধ্যক্ষ বিজেপি এরকম একটা প্লেট দিয়ে গাড়ির নাম্বার দিয়ে আর সেখানটায় গাড়িটা ধরা পড়েছে পুলিশের কাছে এবং পুলিশ জানতে পেরেছে ওই গাড়ির ভেতরে ফেন্সিডিল বা এই টাইপের কিছু আঠা, সেই আঠা ওর ভেতরে ছিল। তো গেলেও আজকে যেটা পুলিশের ব্যাপার, তৎক্ষণাৎ আমি খবরটা পেয়ে আমি ঝাড়খণ্ডে আমাদের যারা নেতৃত্ব তাদেরকে ফোন করবার পর নেতৃত্ব পুরো ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেশন করলে পরে ক্লিয়ার হয়ে যায় যে এটা আমাদের কেউ নয়, মানে বিজেপি। ऐसी ही घटना और देखी गई। आसाम से बिहार तस्करी की जा रही एक ट्रक शराब जिसकी कीमत 60 लाख जितनी बताई जा रही है। नाका चेकिंग होने के बावजूद यह लोग तस्करी कर कैसे लेते हैं? आइए आपको वहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। असम से बिहार तस्करी की जा रही एक ट्रक शराब जब्त, 2 गिरफ्तार। जब्त शराब की कीमत करीब 60 लाख रुपए। जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस ने असम के तेजपुर से अवैध रूप से बिहार तस्करी की जा रही एक ट्रक शराब जब्त की है। पुलिस ने इस सिलसिले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में पुलिस ने अभियान चलाकर करोड़ों रुपए के गांजा जब्त किए हैं। इसके बाद सोमवार को बिहार तस्करी की जा रही एक ट्रक शराब भी जब्त कर लिया है। इस घटना के प्रकाश में आने के बाद आज पूरे शहर में हड़कंप मच गया। जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर जलपाईगुड़ी शहर के गौशाला मोड़ इलाके में 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अभियान चलाकर तस्करी की जा रही एक ट्रक को शराब के साथ जब्त किया गया। पुलिस ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजर रहे ट्रक को जब्त कर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान ट्रक से शराब जब्त की गई। पुलिस ने बताया कि जब्त शराब की कीमत करीब 60 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ऐसे ही गुनाह और गुनाहों से भरी खबरों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए।